দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তারদাহ গ্রামে উম্মিদ একাডেমি নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার বাস্তবিক রূপায়ণের প্রাথমিক ধাপ পেরোলেন সমাজসেবক ওয়ালি রহমানী। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নাদিমুল হক, বিধায়ক শওকত মোল্লা, বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব। এদিন উপস্থিত সকলের আশীর্বাদ নিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নতুন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উম্মিদ একাডেমি নামক স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করে ওয়ালি রহমানী বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে ধনী ও গরিবের শিক্ষা এক হবে। সমাজে গরিবতাকে হটিয়ে নতুন এক উম্মিদের সূচনা করলেন ওয়ালি রহমানী। मुझे याद है वो दिन जिस दिन 3 बच्चे और मैं 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में हम थे, इसके अलावा और कोई नहीं। तो उस दिन सोच बहुत छोटी थी, और मैं कहूंगा फिर से ये बात कि सोच बहुत छोटी थी पर नियत इतना बड़ा था। और क्योंकि नियत इतना बड़ा था तो अल्लाह ने सोच को भी बड़ा किया और काम को भी बड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक हमारी सोच और नियत बड़ी रहेगी इंशाअल्लाह काम बढ़ता जाएगा। मैं তৈরি হচ্ছে এবার, যেখানে এই মুহূর্তে নাদিমুল হক সাহেব এবং শওকত মোল্লা ফাউন্ডেশন স্টোন লাইন সেরেমনিতে অংশ নিচ্ছেন। उम्मीद एकेडमी জন্য আজকে একটা দুর্দান্ত দিন। आइए सामने आप लोग आजा बेटा। फाउंडेशन स्टोन लाइन सेरेमनी অংশ নেওয়ার জন্য পকড়ো রিংকুপাতে চড়ে অনেক দিন আগে 4 বছর আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিল যে গরিব ছেলেমেয়েরা ওদেরকে একটা क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी शिक्षा देवा हो। उसके लिए वो कोशिश भी किए और मेरे ख्याल से उम्मीद एकेडमी की जानिब से वहाँ पर वो शुरू भी किए। और आज बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी आज हो रहा है, यहाँ पर संग बुनियाद डाली जा रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बिल्डिंग और ये स्कूल बन कर तैयार हो। খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে জায়গাটা উম্মিদ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এটা একেবারে রিমোট এরিয়া। এই এমন একটি জায়গায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, যেটা আমি মনে করি আমাদের আশেপাশে এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা আরও একটু এখানে ভালো গড়ে উঠবে। অনেক নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে সুযোগ পাবে এবং এখানে যেভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টটা যেভাবে করার পরিকল্পনা আছে উম্মিদ একাডেমির, সেটা অনেকটা হাইলি বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। এবং আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের এমপি সাহেব থেকে শুরু করে বিভিন্ন অতিথিরা যারা এসেছেন, তারা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং আমি মনে করি এর ফলে আমাদের এলাকা অনেকটা উপকৃত হবে। আমার নিজের যেটা ধারণা, যে আমরা যখন শুরু করেছিলাম এই বাংলায়, তখন আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। এখানকার মানুষজন, এখানে সরকার, সবার কিন্তু আমরা নৈতিক সমর্থন পেয়েছি এবং তা থেকে আমার একটা বিশ্বাস, যে কোনো মানুষ যদি সমাজের জন্যে, মানুষের জন্যে কাজ করতে চায়, তার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওয়ালি রহমানীকে দেখে আমার সেই পুরানো কথাই মনে হচ্ছে যে আমি যখন শুরু করেছিলাম 36 বছর আগে ওর মতো বয়সে, তখন আমরা যেমন বাধাও পেয়েছি তেমনি সহযোগিতাও পেয়েছি এবং সেই বাধাগুলো না পেলে আজকে হয়তো আমরা এগোতে পারতাম না। বাধার মধ্যে, প্রতিকূলতার মধ্যেই কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার রহস্যটা লুকিয়ে থাকে। दो क्वेश्चन, इसमें 3 चीज़ आ गई। 3 बात। पहली तो कि आप कम उम्र बोल रहे हैं। आप भगत सिंह की उम्र क्या थी पता करें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या उम्र थी, चंद्रशेखर आज़ाद तो 14 साल के थे जब जेल गए थे। ठीक है ना। ये लोग कितनी कम उम्र में क्या क्या किया इन लोगों ने। खालिद बिन वलीद का नाम सुना आपने। ये लोग कितनी उम्र में क्या क्या काम, हज़रत अली का नाम सुना आपने। तो उम्र से कुछ नहीं होता, अल्लाह को जिसको चुनना होता है चुन लेते हैं। फिर सवाल ये है कि मैं कर रहा हूँ ये काम, नहीं, ऊपर वाला काम कर रहा है। मैं कौन? मैं सिर्फ एजेंट। काम मेरा नहीं, काम ऊपर वाले का। हम ही एजेंट। जिस दिन मैं बोल दूंगा ये काम मेरा, तो ऊपर वाला एजेंट को चेंज कर देगा। रिलीजन को देना चाह रहे हैं आप, एक रिलीजन तो नहीं कहना बेहतर होगा, हम माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि माइनॉरिटीज़ और आर्टिकल 30 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें ये हक है कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकें। मगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ज़रूर होगा, मगर हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होंगे। किसी भी मज़हब के लोग आएँ, हमारे दरवाजे खुले होंगे और आज भी हमारे दरवाजे खुले हैं। बल्कि हमारे मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल के लोग हैं
हमारे मैनेजर से लेके हमारे प्रिंसिपल से लेकर के हमारे टॉप डोनर्स हैं वो सब नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो ये हम करना चाह रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, मगर इसमें सभी लोगों का हाथ है और सभी लोगों की कुर्बानी है। तीसरा कि क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? हाँ, एक तरह से रिस्क है अगर आप इसको इस तरह देखें कि अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा, मगर फेलियर के बारे में हम सोचते नहीं हैं, जो सच बात है। ऐसा लोग कहते थे कि फायर ब्रांड स्पीकर और यूथ आइकन न जाने क्या क्या कहते थे। के लिए तैयारी थी ये कि मैं 4 साल तक बड़ा स्पीचेस दिया, बहुत पॉपुलैरिटी मिला, फेम मिला, नाम मिला, इज़्ज़त मिला, शोहरत मिला, 7.5 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पे, हर दिन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। यूट्यूब पे 5.5 लाख और न जाने कितने फॉलोअर्स, कितने फ़ैन फॉलोइंग, मीडिया। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मगर उस इज़्ज़त में सुकून नहीं था। एहसास ये था कि इसमें सिर्फ मेरी इज़्ज़त है और मेरी वाहवाही है, इससे लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है? लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा था इससे। तो अल्लाह ने ये काम लिया मुझसे अब, और 2 साल तक मैं बहुत खामोश रहा, आप सभी लोगों ने देखा, और 2 साल बाद शायद पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। और यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी नहीं बनाता, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वीडियोस जो बनाता था। और इस काम में सुकून बहुत है, क्योंकि पता है इस काम में मेरा फ़ायदा हो ना हो, मगर आने वाली नस्लों का फ़ायदा ज़रूर होगा। चौर थे, मगर ये एक वक्त है, अगर वापस वक्त की नज़ाकत उस वली रहमानी को वापस बुलाना चाहेगी तो फिर आ जाएगा वो इंशाअल्लाह। खैर से दूर ढूंढ रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन कलकत्ते में आप ख़रीदने जाएंगे तो 15 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी, और हमें ये ज़मीन 2 करोड़ में मिल गई। और मिल गई इन द सेंस कि हमने पूरी ज़मीन खरीदी भी नहीं। 4 दोस्तों ने ये ज़मीन ख़रीदा था 2000 में, और उन 4 दोस्तों ने 2011 में नक्शा बनाया था यहाँ स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे गरीबों के लिए। पर वो 4 दोस्त अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गए, मगर अल्लाह को काम ये आज लेना था, तो वो 4 दोस्ती की मुलाकात मुझसे हुई, जिन्होंने ये ज़मीन मुझे दे दिया, और इस ज़मीन पे मैं आज स्कूल बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ।